such as philosophy, ethics, psychology, logic, cosmology, astronomy, and medicine. The Nalanda dialogue tradition also emphasizes the use of reason and logic, not faith and dogma, to investigate the nature of reality and attain the wisdom and compassion. The Nalanda dialogue tradition also fosters a spirit of inquiry and debate, which encourages critical thinking, analytical reasoning, and empirical evidence. The Nalanda dialogue tradition also influenced many schools and traditions of Buddhism, especially Tibetan Buddhism, which has preserved and transmitted the Nalanda tradition based on a large number of classical Indian Buddhist texts translated into Tibetan. The Nalanda dialogue tradition has also inspired many modern schools and thinkers who have engaged in dialogue with scientists and other disciplines to address the challenges and opportunities of our times. The Nalanda dialogue tradition, wisdom and inspirations of humanity. Now, I request Dr. Subodh Kumar who introduced the uh, uh, Dr. Buddhadev Bhattacharya, sir. Yeah, now over to you, Dr. Subodh Kumar. नमस्कार सर। सबसे पहले मैं नालंदा फाउंडेशन के चेयरमैन हेमलता कुमारी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कि मुझे यह मौका दिया। वे भी वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं और वो ट्रेन पर हैं, इसलिए ये अवसर हमको मिला। हमको उन्होंने ये अवसर दिया, हम उनका आभारी हैं। वेलकम टू ऑल इन दिस वेबिनार behalf of a scholar discussion forum. Sorry. Welcome to all in this webinar behalf of Nalanda Foundation. You know that Nalanda Foundation is working is not only in educational area, but aims and objects of Nalanda Foundation are giving the different types services in society. In example, opening house of old age person, opening house of without parents children, giving training for self-employed, etc. If any wants to join Nalanda Foundation, contact WhatsApp number 9608179969. I welcome to Dr. Buddhadev Bhattacharya sir, who is a speaker of this webinar. Dr. Buddhadev Bhattacharya sir is an international scholar. He is a speaker of this webinar. Dr. Buddhadev Bhattacharya is an international scholar. He has been the coordinator of the presently Nalanda dialogue many times. He did MA in philosophy, gold medalist, PhD degree from Jadavpur University, diploma in Tibetan studies, Vishwa Bharati, diploma in Pali, Calcutta University, certificate in Mongolian, and 1 year manuscriptology course from the Asiatic Society, Kolkata. Presently, he is working an associate professor in department in philosophy and coordinator manuscript conversation center, now Nalanda Mahavihar Nalanda, deemed University, Ministry of Culture, Government of India. Previously, he worked as a senior researcher for 12 years in the Asiatic Society and MAKIAS under the Ministry of Culture, Government of India, Kolkata. He has published books Nalanda Dialogue 4 volumes, Nalanda Dialogue
4 volumes. Indo-Tibetan Cultural Relation, Karandvu Sutra, Gatha Sanskrit, Dimension of Buddhism and Jainism, and more than 50 research papers, articles in national and international research journals or books. So I am welcome to Buddhadev Bhattacharya sir, and I welcome to convener of this session Dr. Avinash Kumar sir. He is also a great scholar. He presently assistant professor Department of Microbiology, Gyan Jyoti College of Pharmacy and Paramedical, Hazaribagh, Jharkhand. I welcome to Kamlesh Paswan, who is looking after technical works of this function. He is also member of Nalanda Foundation and research scholar. He serves people as a policeman. I welcome to Jyoti Kumari, who will address vote of thanks in this webinar. She is member of Nalanda Foundation. I welcome to all participants who are participate in this webinar from different part of India. I expect you will learn some new things in this webinar. Our program will success from your active participation. So once again, welcome to Buddhadev Bhattacharya sir, Dr. Avinash sir, and all of you. Thanks to all. और एक विनती बुद्धदेव भट्टाचार्य सर से है कि इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं, तो आप सर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बोलेंगे, जिससे कि हम सभी को सीखने में कुछ सुविधाएं मिलेगी. एक बार सभी को पुनः स्वागत है. धन्यवाद. Thank you, Subodh. Now I'm inviting Dr. Buddhadev Bhattacharya sir, and please, we are waiting for your thought. So please, I will not take much time. Yeah, sir, over to you, sir. ओके, थैंक यू. सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन. और मुझे को लगता है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी आदमी हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसलिए हिंदी में ही हम बताएंगे, और ज़रूरी होगा तो कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे. लेकिन पहले हम नालंदा फाउंडेशन को मेरा आंतरिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे को ये बोलने का मौका भी दिए हैं, और नालंदा फाउंडेशन के बारे में मुझे को जितना पता है, कम समय में ये बहुत सारे काम कर चुके हैं और करने का प्रयास भी करते हैं. विशेष करके एजुकेशन फील्ड में इनका काफ़ी योगदान भी है. तो नालंदा फाउंडेशन की तरफ से जो डॉक्टर सुबोध जी जो आप लोग को वेलकम किए हैं वहाँ योगदान करने के लिए, तो आप लोग संभव है तो योगदान कीजिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा. तो नालंदा फाउंडेशन एक दिन बड़ा संस्था बन के बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम एजुकेशन के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. दूसरा है कि स्कॉलर्स डिस्कशन फोरम, ये भी बहुत अच्छा है. एक फोरम बनाया गया है जिसमें स्कॉलर्सली डिस्कशन मंथली रेगुलरली ये लोग करते रहते हैं. तो इनको भी हम लोग मेरे अपना तरफ से हार्दिक अभिनंदन. आप लोग भी ऐसा करते रहिए, क्योंकि विद्या परंपरा जो है ऐसा ही चलते रहता है. कोई भी छोटा संस्था नहीं होता है. अपना सामर्थ्य के अनुसार वो अपने अपने जो कर्म करते रहते हैं, उससे महत्वपूर्ण काम हो जाता है. तो अभी उपस्थित सबको मेरा फिर से अभिनंदन वंदन. हम शुरू करते हैं. आज का विषय जो है नालंदा डायलॉग ट्रेडिशन. इसमें 3 शब्द हैं, नालंदा, डायलॉग
एवं ट्रेडिशन। तो पहले हम लोग नालंदा मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा एंशिएंट यूनिवर्सिटी अर्थात नालंदा श्री नालंदा महाविहार की बात कर रहे हैं। श्री नालंदा महाविहार भारत की प्राचीन भारत में पहले यूनिवर्सिटी तो नहीं है, तक्षशिला पहले यूनिवर्सिटी है, लेकिन सिस्टेमेटिक यूनिवर्सिटी के रूप में पूरा विश्व में फर्स्ट सिस्टेमेटिक यूनिवर्सिटी इन इंडिया, not only in India, not only in Asia, but in the world. So ये हम लोग का गर्व की विषय है। ये नालंदा धरित्री में बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं। उसी नालंदा में एक दिन श्री नालंदा महाविहार के नाम पे एक यूनिवर्सिटी तैयार हुआ था 5th सेंचुरी में, कुमार गुप्त के समय में। हिस्ट्री का आदमी हम लोग अच्छा डेट भी बोल सकते हैं, लेकिन तैयार तो होता है कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्था, विद्वान संस्था विद्यादान के लिए, लेकिन फेज टू फेज इसका डेवलपमेंट होता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का भी डेवलपमेंट 3 फेज में हुआ था। डॉक्टर राजा अशोक, एम्पायर अशोक का भी बहुत सारे बड़ा अवदान है। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है पहले कुछ, इसके बाद स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बढ़ाना पड़ता है। साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन और भी मजबूत करना पड़ता है। तो ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी कहा जाता है जो समय समय पर इसका परिवर्धित रूप हम लोग प्रत्यक्ष किए हैं। लेकिन भारत एक महान संस्कृति, महान ऐतिह्य की देश है, प्राचीन परंपरा की देश है। भारतीय इतिहास, वैदिक, बौद्धिक और दार्शनिक परंपरा बहुत प्राचीन है। तो ये शताब्दी पर शताब्दी जो भारतीय जो संस्कृति है, जो बौद्धिक परंपरा है, जो दार्शनिक परंपरा है, ये प्रभावित करते रहता है समाज के ऊपर, समाज के मनन के ऊपर। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला, साथ साथ दूर दूरांत जो देश है उसको भी प्रभावित किए हैं। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे देश से विद्यार्थी यहाँ आए हैं और पढ़ाई किए हैं और शिक्षा लेकर के अपना देश में उसको प्रचार प्रसार में सहायता किए हैं। सीखना तक एक फेज होता है, सीखने के बाद उसको सिखाना, उसको फिर फैलाना, उसको फिर प्रसारित करना और एक फेज होता है। तो भारतीय संस्कृति तब प्रचार प्रसार हुआ है जो बाहर से बहुत सारे विद्वान लोग ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी के रूप में आए, विद्वान बने, इसके बाद उसको प्रचार प्रसार अपना देश में, अपना संस्कृति में, अपना परंपरा में, अपना स्कूल ऑफ थॉट्स में उसको विस्तार विकास किए हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं जो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। इसका भी बहुत सारे कारण है, वो डिटेल डिस्कशन में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बुद्धिस्ट एम्पायर की योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन ये हम लोग को याद रखना है, आज जिस प्रकार में यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा और सरकार के द्वारा चलते रहता है, उस समय वो व्यवस्था नहीं था। गांव के ऊपर निर्भर करके, विशेष करके नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है आसपास में 100 गांव के ऊपर निर्भर करके वो यूनिवर्सिटी चलता था। आम आदमी उसको दान देते थे और एक यूनिवर्सिटी जब स्थापित हुआ है उसका आसपास में बहुत सारे कॉलेज जैसा आज भी रहता है, उस समय भी बिहार का नाम पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को महाविहार कहा जाता था और बिहार के नाम पे और बहुत सारे छोटा छोटा कॉलेज जहां से प्राइमरी हायर एजुकेशन ले करके और भी उच्चतर शिक्षा के लिए आपका यूनिवर्सिटी में आते थे विद्यार्थी, शिक्षार्थी। लेकिन
शिक्षा के सबसे बड़ा अंग जो था प्राचीन काल से, वो है एक वाद परंपरा, जिस पर हम लोग बात करेंगे। ये शिक्षा के एक अंग है, पार्ट ऑफ द एजुकेशन, डायलॉग, डिस्कशन और आर्गुमेंटेशन, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, जो भी नाम हम लोग बताएं, इसको वाद परंपरा, वादानुवाद, तर्क, वितर्क, बहुत सारे नाम पे हम लोग पुकारते हैं, लेकिन ये सभी हैं एजुकेशन का पार्ट है। अर्थात प्राचीन भारत की एजुकेशन की पार्ट के रूप में वाद परंपरा को जाना जाता है। और ये वाद परंपरा केवल बुद्धिस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन के रूप में केवल नहीं था, ये वैदिक परंपरा में था, श्रामणिक परंपरा में था, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जितना प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उस समय था, व्यक्तिगत रूप में भी शिक्षा चलता था, मंदिर के अंदर में भी शिक्षा प्रतिष्ठान चलता था, बौद्ध विहार महाविहार में भी शिक्षा प्रतिष्ठान चलता था, जैन परंपरा में भी शिक्षा प्रतिष्ठान चलता था, आश्रमिक परंपरा में शिक्षा व्यवस्था चलता था। इसका बहुत सारे नाम है, गुरुकुल, आश्रमिक व्यवस्था, हम लोग इसका बात भी करेंगे। लेकिन जो भी है, ये परंपरा की हम लोग को याद रखना है, अशोकन इंस्क्रिप्शन के पहले लिखने का व्यवस्था की उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए लिखित रूप से किताब, पोथी, मैन्युस्क्रिप्ट बाद में मिला है। इसका पहले नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो गया। इसके पहले भी वैदिक परंपरा चल रहा था। वैदिक परंपरा को हम लोग श्रुति और स्मृति परंपरा में जानते हैं, क्योंकि सुन सुन के सीखना, उसको याद करना, उसको ध्यान में उपलब्ध करना, यही भारतीय परंपरा है। तो सुन सुन के जब सीखते थे, इसमें एक सबसे बड़ा जो पद्धति था, उसको प्रश्न उत्तर की पद्धति कहा जाता है, जिसको परिपीक्षा व्याकरण भी कहा जाता है। परिपीक्षा व्याकरण मतलब पूछना, मेरे अंदर में जो क्वेरी है, क्योंकि ज्ञान की पहले शर्त है व्यक्ति का मन में, अंदर में प्रश्न जगता है, क्यों, कहां से, कौन, इस प्रकार जो प्रश्न पहले मेरा मन में जागेगा, तो इसका समाधान कहाँ होगा? मेरा गुरु के सामने जा करके। तो गुरु को पूछना, पूछताछ करना, और पूछताछ करके जानना सीखना एक परंपरा था, जिसको प्रश्न उत्तर परंपरा भी कहा जाता है। इसको परिपीक्षा व्याकरण पद्धति भी कहा जाता है। तो कहां से, क्यों, किनके द्वारा, इस प्रकार जो प्रश्न मेरा मन में उठता है, वो हम जाकर के समाधान के लिए जहां से मेरा ज्ञान मिलता है, अर्थात वो टोल व्यवस्था हो, वो गुरुकुल हो, वो आश्रम हो, जा करके हम पूछते हैं। तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जो वैशिष्ट था, उसके बारे में भी हम लोग दो चार बात करेंगे। ऋग्वेद के समय से शिक्षा की जो क्रम विकास हम लोग देखे हैं, उसका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ही है, उस सार्विक शिक्षा के बारे में बताया जाता था। सार्विक शिक्षा के अर्थ हो गया बहिर्मुखी शिक्षा एवं अंतर्मुखी शिक्षा, अर्थात केवल फिजिकल एजुकेशन नहीं, केवल बाहर जगत की विषय के बारे में नहीं। वैदिक परंपरा में हम लोग को सबसे बड़ा चीज जो सिखाया जाता है, जो वैदिक परंपरा में उपनिषद जब आया है, उसमें मेरा मन में, अर्थात वनवासी के मन में जो प्रश्न आया था, जो हम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब जो प्रश्न आया है, उपनिषद उसका समाधान किया है। तो उसे, वो जो प्रश्न है, वो प्रश्न केवल बहिर्मुखी प्रश्न नहीं है, केवल बाहर जगत को जानने के लिए नहीं है। आज भी जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति में ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है,
लेकिन प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में दोनों विद्या को अर्थात अंतर्मुखी विद्या तथा आध्यात्मिक विद्या पर भी ध्यान दिया जाता था और उस पर भी ज्यादा गुरुत्व था। और इसी पद्धति में नैतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा एवं बौद्धिक शिक्षा मतलब इंटेलेक्चुअलिटी पर भी ध्यान दिया जाता था। तो इस पर ये पद्धति में जो जिस विषय पे ज्यादा गुरुत्व होता था वो है मानवता, सत्यता, नियमानुवर्तिता, आत्मविश्वास, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अर्थात एक विद्यार्थी केवल मानविक रूप में मनुष्य निर्माण, देखिए पशु निर्माण होने से आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, पशु बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास क्या हुआ? परिपीक्षा, पूछना, जानना, सीखना। तो इसलिए मानवता की विकास सबसे पहले होता है और वो मानवता की विकास वो भी दो भाग में बांटा जाता है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। तो ये मानवता की विकास और सत्यता को जानना अर्थात व्हाट इज द रियल ट्रूथ, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, इस पर ध्यान ज्यादा दिया जाता था। अर्थात जो जगत को हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जो जगत के प्रति हम लोग आसक्त हैं, जो जगत मेरे साथ हैं, जिसके साथ नित्य हम व्यवहार में रहते हैं, वो जगत कैसे हैं, वो जगत का सत्यता क्या है, कौन सी चीज है जिसको सत्य माना जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता था। और आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, ये जो बात है ये हम लोग विवेकानंद की बात में, परवर्ती काल में विवेकानंद की बात में भी बार बार सुने हैं और ऋषि अरविंदो की बात में सुने हैं, वेदांत दर्शन में भी सुनाया जाता है। क्योंकि जब तक मेरे आत्मविश्वास प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगा तब तक कोई चीज को हम रियलिटी में प्रतिष्ठा कर नहीं पाएंगे। इसलिए जैसा प्रश्न मेरा मन में जगता है उत्तर गुरु से मिलता है, इस प्रकार आत्मविश्वास पहले उत्पन्न होने के बाद बाहर जगत को प्रतिष्ठा करना, अंतर जगत को प्रतिष्ठा करना, ईश्वर माने तो ईश्वर के साथ मेरा संपर्क स्थापन करना, सब कुछ संभव होता है जब तक आत्मविश्वास प्रतिष्ठित है। इस पद्धति को मानव और प्रकृति, देखिए ये प्राचीन भारत में आज जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए इतना सोच रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के सोच प्राचीन भारत में क्यों नहीं था? क्योंकि प्रकृति और मानवता के साथ को रिलेशन था, को एग्जिस्टेंस, को रिलेशन, को हेल्पनेस, इस प्रकार की जो था, अर्थात उभय के ऊपर निर्भरशीलता को रियलिटी में वो लोग अनुभव करते थे और इसलिए परस्पर को सहायता करके दोनों को एग्जिस्टेंस को, क्योंकि सरवाइव हम लोग कर पाएंगे तब एक दूसरे पर निर्भरशीलता है, एक दूसरे को भी देखना पड़ता है, तो ये शिक्षा भी दिया जाता था। इसलिए वेद, उपनिषद इत्यादि जो परंपरा हम लोग के सामने आया था उसमें केवल व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, अर्थात व्यक्ति विकास पर निर्भर नहीं था, व्यक्ति, संसार अर्थात परिवार, इसके बाद समाज, तीनों को ऊपर जोर दे करके, तीनों को ऊपर एम्फेसिस करके, तीनों को कैसे भरसम रखा जाए, तीनों में मेरा व्यवहार किस प्रकार होगा, इसका भी कर्तव्य क्या होगा, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या होगा, परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य क्या होगा, व्यक्ति रूप में हम किनके साथ किनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, ये सब शिक्षा भी दिया जाता था। सुस्त शरीर अर्थात स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन की शिक्षा अधिक रूप से दिया जाता था। अर्थात जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मेरा मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम सुस्त समाज की एक पाठ नहीं बन सकते हैं। सुस्त समाज तभी निर्माण हो सकते हैं जब एज ए यूनिटी के रूप में हम भी एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की साधन करेंगे।
हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक के बारे में उल्लेख किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हम लोग को मिला है दोनों पर्यटक जो चाइना से आए थे, एक हेंगसंग, मास्टर हेंगसंग, दूसरा इत्सिंग। इनका जो ट्रैवलग है अर्थात यात्रा विवरणी है, वही से हम लोग को ज्यादा पता होता है। तो ये भी जाना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पद्धति में भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, परिप्रेक्ष्य व्याकरण अर्थात प्रश्न उत्तर, जिसको आज हम लोग डायलॉग के नाम पे बोलते हैं, डिस्कशन के नाम पे बोलते हैं, डिस्कोर्स के नाम पे बोलते हैं। ये तो हम लोग बोले हैं जो श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा हम लोग को वैदिक काल से हम लोग इसको आयत्त तो किए हैं, और उसी के आधार पे आज जो वेद उपनिषद हम लोग के सामने साहित्य के रूप में उपस्थित हुआ है, प्राचीन साहित्य के रूप में उपस्थित हुआ है, वो स्मृति का ही फल है। अर्थात श्रुति के रूप में हम सीख लिया, उसको ध्यान किया, और स्मृति के रूप में उसको हम शेयर किया, दूसरे के साथ उसको शेयर किया, उसको भाग बंटवारा किए, क्योंकि ज्ञान ही एक चीज है जो देने से बढ़ता है, ये हम लोग जानते हैं। तो प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार था, इस पर भी दो चार बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के आधार पर ही ये बात परंपरा टिकी हुई है और बात परंपरा आज भी चल रहा है। प्राचीन भारत में दो प्रकार शिक्षा व्यवस्था था, जो वैतनिक अवैतनिक रूप में, अर्थात फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्योग में जो पाठशाला, टोल, चतुष्पाठी व गुरुकुल इस प्रकार की व्यवस्था था, जिसमें कभी कभी एक गुरु 20, 22, 25, 10 विद्यार्थी को अपना घर में रख करके उनको खिला पिला करके उसको सिखाते थे। लेकिन ये जो गुरुकुल, ये जो चतुष्पाठी टोल चलता था, केवल पब्लिक का दान पर चलता था। गांव का आदमी ये सब उनका दान पे चलता था। लेकिन ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एजुकेशन टोटली फ्री था, अर्थात एजुकेशन लेने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना, आवश्यक रूप में किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, अर्थात फ्री एजुकेशन। गुरुकुल में भी कोई विद्यार्थी आकर के जब गुरु के पास रहते थे, गुरु के साथ ही रहते थे और गुरु के साथ ही व्यवहारिक जीवन में काम करते थे। गुरु भी विद्यार्थी को सिखाते और विद्यार्थी शिक्षार्थी भी गुरु को सहायता करते थे दैनंदिन जीवन में। लेकिन इसमें कोई पैसा की लेन देन अर्थात आवश्यकता, बाध्यबाधकता नहीं था। लेकिन मंदिर में भी शिक्षा चलता था, और बौद्ध युग में बिहार और महाबिहार में उच्च शिक्षा की व्यवस्था केंद्र बिंदु था। शिक्षा मूलतः ओरल ट्रेडिशन में चलता था, ये तो हम लोग पहले भी बात किए हैं, ओरल ट्रेडिशन चलता था। बारंबार इसको याद करना और याद करके उसको ध्यान करके उसको याद रखना, यही, और अनुभव करना। इसलिए ध्यान और मेडिटेशन भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण था। आजकल मेडिटेशन हम लोग करते ही नहीं है। मेडिटेशन के सेंटर तो बहुत बना हुआ है पूरा भारत में, इतना मेडिटेशन गोयनका जी आने के बाद, लेकिन मेडिटेशन हम लोग नहीं करते थे। और वहाँ व्यक्तिगत उद्योग में मेडिटेशन होता था। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? मनन करना। कोई विषय को सीखने के बाद उसको मनन करना, उसको बार बार मनन करने से क्या होता है, उसको वो संस्कार बन जाता है, उसको ज्यादा दिन तक हम लोग याद रख पाते हैं। जैसा बचपन में कोई कविता को हम लोग याद किए, वो कैसे किए? वो कविता को बार बार बोलते बोलते, मनन करते करते उसको याद हो गया। जो 80 साल की उम्र में भी वो बचपन की कविता हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार बन जाता है। इसलिए मनन करना, ध्यान करना, ये सब चीज आवश्यक रूप में किया जाता था। गुरुकुल को आश्रम भी बोला जाता है, और एक गुरुकुल कभी कभी जंगल में होता था, क्योंकि जंगल में अभी आवासीय परिसर बनता था, उसमें गुरु भी रहते थे, गुरुपत्नी के साथ बाकी विद्यार्थी अपना माँ बाबा की तरह विद्यार्थी के व्यवहार के साथ वो शिक्षा ग्रहण करते थे।
इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, जैसा हम लोग देखेंगे बिहार और महाबिहार के बारे में भी, वहां गुरु का पूर्ण स्वाधीनता है, जो कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा विद्यार्थी के रुचि के अनुसार, अर्थात विद्यार्थी किस प्रकार जानना चाहते हैं, किस प्रकार प्रश्न उनका मन में आता है, अर्थात किस प्रकार पूर्व जन्म की संस्कार लेकर के वो आए हैं, उस प्रकार विद्यार्थी को सिलेबस दिया जाता था और उसी प्रकार शिक्षा दिया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा जंगल में आवासीय परिसर में क्यों होता था? क्योंकि वहां शांत परिवेश में शिक्षा ग्रहण सबसे अनुकूल माना जाता था। शांत परिवेश में ध्यान अनुकूल परिवेश बनाया देता है। वैदिक शिक्षा में महिला का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वेद से हम लोग जानते हैं मैत्री का नाम विशंभरा, अपुला, गार्गी, लोपामुद्रा प्रभृति जो विद्वान महिला के नाम हम लोग जाने हैं, ये भी विद्वान के रूप में शिक्षा ग्रहण करके आई थी। तो मतलब है वैदिक स्कॉलर के रूप में महिला के नाम भी जाना जाता है, अर्थात वहां महिला की शिक्षा की अधिकार था। लेकिन बौद्ध विहार और बौद्ध महाविहार जो स्थापना हुआ था उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, जो केवल बौद्ध सन्यासी के लिए शिक्षा व्यवस्था है ये था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध सन्यासी बिना और किसी का कोई प्रवेश नहीं है। इसके बारे में हम लोग का नालंदा डायलॉग जब हम लोग बात करेंगे देखेंगे, जो आम आदमी का वहां प्रवेश था एवं कोई भी ले पर्सन जो मॉन्क नहीं है वो भी जा करके पार्टिसिपेट करते थे। इसलिए उनके लिए, उनका शिक्षा के लिए भी, वो शिक्षा प्रसार के लिए भी वो डायलॉग जब होता था, पब्लिक डायलॉग जब होता था, तो नालंदा महाविहार अर्थात नालंदा यूनिवर्सिटी के ईस्टर्न गेट जो पूर्व दिक की जो द्वार था उसका बाहर में होता था, जिसमें आम आदमी जो लोग 100 गांव के आदमी जो महाविहार को चलाते हैं वो लोग आकर के भी वहां योगदान करते थे, वो शिक्षा लेते थे और पाठ होता था, डायलॉग का पाठ होता था। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप से पंच महाविद्या पढ़ाया जाता था। पंच महाविद्या और 9 अनुविद्या ये पढ़ाया जाता था। तो पंच महाविद्या में भी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्मशास्त्र था। ये छोड़ के भी आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के लिखा ग्रंथ भी पढ़ाया जाता था, अर्थात पांडुलिपि के रूप में। बाद में पहले तो पांडुलिपि था ही नहीं। चरक, सुश्रुत की औषधि विद्या और चिकित्सा विद्या भी यहाँ पढ़ाई होता था। ये छोड़ के इतिहास, युक्ति विद्या, मीमांसा, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि विद्या, धातु विद्या, शरीर विद्या, धनुर्विद्या तक भी सिखाया जाता था। बहुत सारे लोग को पता है कि केवल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है कि इसलिए केवल बौद्ध विद्या चर्चा किया जाता था, नहीं। ये बौद्ध एवं अबौद्ध तथा वैदिक परंपरा एवं अवैदिक परंपरा दोनों रूप से यहाँ विभिन्न प्रकार विषय को पढ़ाया जाता था। लेकिन सभी विषय के साथ शास्त्रार्थ अर्थात डायलॉग अनिवार्य रूप में होता था, क्योंकि डायलॉग केवल परीक्षा की मापदंड नहीं था, कि परीक्षा पास करने के लिए मापदंड नहीं था। कभी कभी एक चैप्टर पढ़ाया गया है, इसके बाद वो चैप्टर में कितना विद्यार्थी सीख पाए हैं उसको भी परीक्षा होता था। इसलिए कभी कभी एक चैप्टर के बाद, और हम लोग देखेंगे बाद में ह्वेनसांग एवं इत्सिंग 7th सेंचुरी में आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी बता रहा है, जो दिन में कभी कभी 100 से ज्यादा डायलॉग होता था। मोर देन 100 डायलॉग नालंदा यूनिवर्सिटी में होता था। और ये डायलॉग केवल बौद्ध विषय पर नहीं, कोई भी विषय पे, क्योंकि डायलॉग मतलब कोई इशू, कोई भी समस्या हुआ है उसको समाधान करने के लिए वो किया जाता था। तो उस पर हम लोग आ रहे हैं। तो ह्वेनसांग और इत्सिंग जो यात्रा विवरणी है उससे हम लोग जान पाते हैं कि केवल नालंदा तक्षशिला नहीं, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगद्दल प्रभृति महाविहार का नाम है, जो महाविहार मतलब यूनिवर्सिटी के रूप में
और उसका आसपास में बहुत सारे कॉलेज बिहार के रूप में था। उन लोग का विवरण से हम लोग जानते हैं। अर्थात प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में विद्या की व्यवस्था की प्रसार बहुत ही सुलभ रूप में पाया जाता था। और इसी रूप में बनारस, नवद्वीप, कंची, जो आपका मंदिर के रूप में विद्या प्रतिष्ठान, जिसको भी यूनिवर्सिटी के रूप में स्वीकार किया जाता है, नवद्वीप, कंजी, बनारस, ये सब प्रभृति स्थान जो है मंदिर केंद्रित विद्या प्रतिष्ठान, जो वैदिक परंपरा में इसको यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें नियमित रूप में पारस्परिक आलोचना सभा, तर्क सभा प्रभृति होता था नियमित रूप में। कभी कभी राजा की उपस्थिति में ये होता था, क्योंकि राजा के मन में स्वयं कोई संदेह हुआ है, कोई विषय पे उनका संदेह हुआ है, मतलब सुनिश्चित रूप में उनको पता नहीं है क्या उत्तर होना चाहिए, रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियल ट्रूथ, तो वो राजा स्वयं उसका समाधान के लिए तर्क वितर्क सभा आयोजन करते थे और वहां बैठ के वो खुद भाग लेते थे श्रोता के रूप में, कभी कभी वक्ता के रूप में, कभी कभी आप उपदेष्टा के रूप में भाग लेकर के परिचालना करते थे। लेकिन ये देखना पड़ता है कि वाद विवाद की जो शास्त्रार्थ जो है वो आवश्यक था मानदंड के रूप में। शिक्षक कितना, अर्थात शिक्षक अपने को मापने के लिए आज भी एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम हम लोग बोलते हैं कि विद्यार्थी के एग्जाम, एक्चुअली विद्यार्थी के एग्जाम कभी होता नहीं है। एग्जाम होता है शिक्षा देने वाला शिक्षक का। शिक्षक अर्थात टीचर, गुरु कितना सिखा पाए हैं उसका एग्जाम लेते हैं। तो वाद परंपरा का मूल उद्देश्य था जे शिक्षक कितना विद्यार्थी को दे पाए हैं और विद्यार्थी उसको कितना ग्रहण कर पाए हैं, इसका परीक्षा होता था। तो इसलिए परीक्षा के रूप में वो डायलॉग व्यवस्था के आयोजन किया जाता था। तो मूल उद्देश्य क्या क्या था? परीक्षा इस प्रकार जो परीक्षा पद्धति अर्थात जो डायलॉग व डिस्कोर्स होता था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है समाज में, वो कॉन्सेप्ट उसका पुष्टिकरण अर्थात उसका क्लियरिटी जो क्या कितना स्पष्ट है उसको स्पष्ट करने का उद्देश्य था डायलॉग। दूसरा उद्देश्य है कि ज्ञान की परिसीमा नापने का, अर्थात विद्यार्थी कितना तक पहुंच पाए हैं रियलिटी तक। रियलिटी के पहुंचने के लिए जो शिक्षा हम लोग लेते हैं वो शिक्षा में कितना तक पहुंच पाए हैं, ये भी डायलॉग से नापा जाता था। डायलॉग का उद्देश्य था बुद्धि का विश्लेषणात्मक कौशल, अर्थात कोई विद्यार्थी विशेष कोई विषय को व विशेष कोई इशू को किस प्रकार में विश्लेषण कर पाते हैं, विश्लेषण करके उसको कितना तक अंदर में प्रवेश कर पाते हैं, इसका देखने का भी एक उद्देश्य होता था डायलॉग का। कोई विषय को किस प्रकार में ज्योतिक पद्धति में उसको उपस्थापन करते हैं विद्यार्थी, ये भी देखने का एक पद्धति है डायलॉग। अर्थात वो प्रेजेंटेशन किस प्रकार में कर रहे हैं, उसका उदाहरण किस प्रकार में दे रहे हैं और उसको किस प्रकार में एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब देखने का ये था। लेकिन डायलॉग व वाद परंपरा में हम लोग को दो चीज याद रखना है। वाद परंपरा, वाद विवाद को बोल सकते हैं, जब वाद के साथ विवाद जा सकता है लेकिन वाद के साथ वितंडा नहीं जा सकता है। ये दोनों में अंतर क्या है? जो वाद विवाद मतलब मैं एक पक्ष हूं, इसका नियम भी है। वाद विवाद करने का मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए। इसका शर्त है कि 2 व्यक्ति के अंदर में वाद विवाद चलेगा, वाद परंपरा चलेगा, डायलॉग चलेगा, डिस्कोर्स चलेगा। नहीं तो 2 ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप भी यहाँ शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप पहले पक्ष में कहेंगे
कोई भी इशू है उसका पक्ष में कहेंगे, विपक्ष में दूसरा लोग कहेंगे। लेकिन याद रखना है, आज टीवी में जैसा वाद विवाद होता है इस प्रकार नहीं, वहां तो केवल झगड़ा होता है। तो वाद विवाद की मतलब है आपका डिसिप्लिन के अनुसार उसको करना है, उसका सिस्टमेटिक वे में करना है, उसका नियम कानून बनाया गया है कि कौन कर सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं, क्या कर नहीं सकते हैं, क्या क्या करना माना है। वितंडा का अर्थ होता है कि जहां हम बलपूर्वक, मर्यादा पूर्वक, जहां हम अपना व्यक्तिगत रूप से फोर्स करके बलपूर्वक हम किसी को प्रतिष्ठा करने के प्रयास करेंगे, इसको वितंडा कहा जाता है। लेकिन बात के साथ वितंडा नहीं चलेगा, बात के साथ विवाद चलेगा। विवाद शब्द का क्या अर्थ है? जब पूर्व पक्ष जो बात रखे हैं, पूर्व पक्ष जो लॉजिकल ग्राउंड रखे हैं, जो आर्गुमेंट दिया है, उसको पहले खंडन करना, दूसरे रूप में मेरा अपना मत को प्रतिष्ठा करना, ये आर्गुमेंट का सर्वश्रेष्ठ नियम है। और ये नियम केवल बौद्ध परंपरा में नहीं, वैदिक परंपरा अर्थात श्रामणी कल्चर में सभी जगह में ये नियम माना गया है। जो डायलॉग होगा एक निर्दिष्ट स्थान में होगा, स्थान भी निर्धारण किया जाएगा, कौन कौन स्थान में डायलॉग हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ये भी बताया गया है। जहाँ कोलाहलपूर्ण स्थान है वहां डायलॉग नहीं हो सकते, अर्थात जहाँ डिस्टर्बेंस हो सकते हैं वहां डायलॉग नहीं हो सकते, शांत स्थान में होगा। और टाइम भी बताया गया है, रात दोपहर में कभी डायलॉग नहीं हो सकता, भोर में कभी डायलॉग नहीं हो सकता। मौन जब शांत रहता है तभी डायलॉग हो सकता है, अर्थात सवेरे डायलॉग हो सकता है, पूरा दिन भर डायलॉग हो सकता है, शाम तक डायलॉग हो सकता है, लेकिन रात में डायलॉग नहीं हो सकता, भोर में डायलॉग नहीं हो सकता। ये सब नियम बताया गया है। तो इसलिए जो डायलॉग का भी कुछ नियम बताया गया है, हम कुछ टेक्स्ट के नाम भी लूंगा जिस टेक्स्ट में ये सब नियम दिया गया है। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता है, पाक्सम जोंगसम करके एक टेक्स्ट है टिबेटन में, और जो मंगोलियन सोर्स से लिखा गया था, सुम्पो खेनपो येसे पेल्जोर जो लिखे हैं, 18वीं सेंचुरी का टेक्स्ट है, जो इंडियन स्कॉलर शरद चंद्र दास, एसपी दास, इसका एडिट भी किया है, अनुवाद भी किया है। इसमें नालंदा का बारे में नाम और एक बार बोलबेन। पाक्सम जोंगसम, पाक्सम जोंगसम, पाक्सम जोंगसम, सुम्पा खेनपो येसे पेल्जोर, 18वीं सेंचुरी का टेक्स्ट है। इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे तथ्य हम लोग को मिलता है। इसमें बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि 100 से ज्यादा तर्क वितर्क अर्थात डायलॉग यहाँ नालंदा में चलता था। और यहाँ ये भी बताया गया है कि आम आदमी का योगदान यहाँ होता था, अर्थात आम आदमी यहाँ योगदान कर सकते थे, ठीक है, अर्थात भाग ले सकते थे। हम लोग जानते हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी, अभी हम लोग को अविनाश जी बताए हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक 700 साल चला है। लेकिन 700 साल में 600 साल 600 years केवल वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा में तर्क वितर्क चला है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सभी लोग हम लोग याद रखेंगे। जो वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा में जो 600 साल तक वाद विवाद चला है, क्योंकि बौद्ध परंपरा में ईश्वर को स्वीकृति नहीं दिया गया है, परमानेंट आत्मा को नहीं माना जाता है, वस्तु के रूप में जाति को, यूनिवर्सलिटी को नहीं माना जाता है, वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में आकाश को नहीं माना जाता है। इस प्रकार जो इनकार किया गया है, तो केवल हम इनकार करते हैं बोलने से तो नहीं होगा, इसको युक्ति के साथ, आर्गुमेंट के साथ आपको रखना पड़ता है। तो ये सब इशू पे बौद्धिक परंपरा अर्थात न्याय परंपरा में तर्क वितर्क चला है 600 साल तक। और इसलिए हम लोग को बहुत सारे किताब, ह्यूज नंबर ऑफ टेक्स्ट हम लोग को मिला है। ये बोलने में मेरा गर्व होता है
जो इतना टेक्स्ट हम लोग को मिला है, 5000 से अधिक टेक्स्ट, जो न्याय परंपरा और बौद्ध न्याय परंपरा के बीच में जो डायलॉग हुआ है, डायलॉग मतलब कोई भी इशू पे उसको बात वितंडा होता था तो एक व्यक्ति उस पर एक किताब लिख देते थे, वो किताब को खंडन करने के लिए दूसरा पक्ष और एक किताब लिख देते थे। इस प्रकार में 5000 से अधिक किताब, 5000 संख्या में हम बोल रहे हैं, लेकिन 5000 से भी बहुत अधिक किताब हम लोग के सामने आया है, जो भारतीय मूल्यबोध, भारतीय परंपरा, भारतीय वाद विवाद, डिस्कोर्स हम लोग को सामने उपस्थित करते हैं। तो 7th सेंचुरी में अच्छा, वो तो आए थे हेंगसंग और इत्सिंग, उनका विवरण से हम लोग देखें कि 100 से अधिक डिबेट चलता था। हेंगसंग बोले हैं एक जगह पे, वेद, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, अथर्व विद्या, जादू विद्या भी यहाँ सिखाया जाता था। ये जादू विद्या मतलब है अथर्व वेद के एक पार्ट है, अथर्व वेद में जादू विद्या भी यहाँ सिखाया जाता था, शंख भी सिखाया जाता था, आयन भी सिखाया जाता था, अर्थात आयन भी पाठ्यक्रम में था। और आपका ज्योतिष शास्त्र, शहर प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ द टाउन, ये भी सिखाया जाता था, ये भी विद्या के रूप में सिखाया जाता था। लेकिन डायलॉग कोई भी विषय पे हो सकता था, डायलॉग केवल फिलोसफी पे हो गया ऐसा नहीं, वो हिस्ट्री हो, वो धातु विद्या हो, वो अथर्व विद्या हो, कोई भी विषय पे भी कोई भी इशू होता है तो उस पर डायलॉग हो सकता है। लेकिन ये बाद परंपरा में आचार्य का क्या भूमिका होता था? आचार्य का भूमिका होता था, आचार्य पूर्ण, हम ये भी पहले ही कहा है, जो आचार्य पूर्ण रूपे न एकदम स्वाधीन अर्थात आजादी था कि कितना विद्यार्थी को एडमिशन लेना है, कितना विद्यार्थी को सिखाना है, कौन विद्यार्थी को क्या सिखाना है, कितना दिन तक सिखाना है, और सिलेबस कितना दिन, अर्थात विद्यार्थी को पाठ कब समाप्त हो जाएगा वो डिक्लेयर कौन करेंगे? आचार्य खुद करेंगे। आचार्य जी बताएंगे तुम्हारा विद्या कंप्लीट हो गया, तुम जा सकते हैं। लेकिन जाने के पहले डिबेट में अंशग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट में अंशग्रहण करके तुमको प्रमाण करना है तुम क्या सीखे हैं, अर्थात सिखाने में हम सफल है कि नहीं, और वो सबके सामने होगा। क्योंकि डिबेट दोनों व्यक्ति के अंदर में हो सकता है, दोनों ग्रुप के अंदर में हो सकता है, लेकिन सुनने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी विषय का व्यक्ति वो सुन सकते हैं, उसमें प्रश्न भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आर्गुमेंट और सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है डिबेट में। और सपोर्टिंग आर्गुमेंट देने के समय याद रखना पड़ता है कि कौन सा उदाहरण को हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उदाहरण वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी कुछ चीज हम लोग देखेंगे, जैसा आर्गुमेंट तैयार करने में पहले जो डिबेट शुरू होता है, पहले डिबेट शुरू होने में वो डेफिनेशन कहा जाता है, जो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन आप क्या देना चाहते हैं। डेफिनेशन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कोई विषय पे, जैसा मान लीजिए हम ईश्वर मानते हैं, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर गॉड, जो पहले ईश्वर का डेफिनेशन दो। और वो डेफिनेशन पर बहुत चर्चा होता था, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन की कॉन्सेप्ट भी है हम लोग का, जो आप जो डेफिनेशन क्या है उसका डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट भी है। उसके बाद जो डेफिनेशन वो दिया है उसको परिष्करण पद्धति में, परिष्करण मतलब उसको क्लियरिटी देने में, विश्लेषण करते करते उसको उदाहरण के साथ बताना पड़ता है, और उदाहरण वास्तविक रूप में उसको रियल उदाहरण होना चाहिए, अवास्तव उदाहरण नहीं चलेगा। तो ये सब नियम बनाया गया था। तो हम लोग अभी देखेंगे जो एजुकेशन सिस्टम जो चला था, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में जो परंपरा, एजुकेशन जो परंपरा है, इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य में, व्यक्तिगत उद्योग में कुछ आश्रम और ये चलता था। मध्यकालीन युग में, मध्य युग में आपका मुक्तावास व मद्रासा सिस्टम भी आया है एजुकेशन के लिए। देखिए, एक विशेष कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उनका शिक्षा के लिए, इस्लाम धर्म शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य जैसा धर्मशास्त्र था, जैसा
आपका वो आध्यात्मिकता था, नैतिकता भी था, मानवतावाद भी था। उसके साथ तो मध्यकालीन युग में जब इस्लाम प्रवेश हो गया था, उसलिए मुक्ताबास व मद्रसा व्यवस्था भी यहाँ खुल गया है और शिक्षा की और एक नया धारा शुरू हो गया था। और ब्रिटिश पूर्व भारत में शिक्षा व्यवस्था तो बहुल प्रचलित था, मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में शिक्षा दिया जाता था। Sorry, sir, I'm interrupting you. Yeah, Pallavi has some question. Yeah. हाँ हाँ, सर मद्रासा सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? वो मध्य युग में कहा गया है। मध्य युग में जब इस्लाम की अनुप्रवेश हो गया था, इसके बाद मध्य युग में हम पर्टिकुलर टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरा उतना नहीं जानकारी है, लेकिन मध्य युग में अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि जब वो राखी बंधन और वो सब नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ, तब इस्लाम एक्चुअली दे felt that they were deprived than the Hindu community because Hindus are much more educated and they are getting many posts in the administrative level. That's why वहां पे जो मुस्लिम थे वो लोग अलग हो गए और वो लोग एजुकेशन सिस्टम को अलग, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी में जो शुरू हुआ उसमें अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से ये, तो मैं ये जानती थी। मध्य युग का मुझे पता नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मध्य युग में ये पर्टिकुलर टाइम वो इतिहास वाले लोग ही बोल पाएंगे, हम नहीं जानते, लेकिन मध्य युग में अर्थात इस्लाम की प्रवेश के बाद इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार के कारण धार्मिक और आध्यात्मिकता की शिक्षा के लिए इसका प्रतिष्ठा किया गया था। ये लिखा है आपका कटला माने कैटलॉग में। इसके बाद हम लोग देखें जो टोल व्यवस्था जो था वो बंगाल में ज्यादा था और पाठशाला व्यवस्था जो था वो पश्चिम भारत में ज्यादा था। चतुष्पाठी जो है वो बिहार अंचल में ज्यादा था और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पूरा भारत में था। लेकिन शिक्षा के बारे में हम पहले भी बताए हैं, ये मुक्त शिक्षा था लेकिन सेंट्रलाइज्ड शिक्षा नहीं था, अर्थात केंद्रीभूत शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि वो गवर्नमेंट का द्वारा प्रचलित नहीं था ना, ये व्यक्तिगत उद्देश्य व संगठन के रूप में व कहीं मंदिर का उद्योग में कभी और किसी संस्था के द्वारा शिक्षा व्यवस्था होता था, इसलिए ये सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन व्यवस्था नहीं था, लेकिन सभी जगह शिक्षा फ्री एजुकेशन था। लेकिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था प्राचीन का धारा को पदानुकरण करके पदानुसरण करके चल रहा था, ये भी बताया गया है। क्योंकि आज माने बीच में जो नहीं चला था, बीच में जो एक लगभग 80 साल 75 साल जो ब्रिटिश पीरियड की समय जो शिक्षा व्यवस्था आया था, वो तो केवल भारतीय संस्कृति को ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनका एक नया शिक्षा व्यवस्था जो मैक्वेल द्वारा जो प्रचलित किया गया था, तो उसमें भारतीयता नहीं था, शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता की ये नहीं था। तो उसके लिए एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, फिर प्राचीन व्यवस्था को अनुसरण करके, प्राचीन व्यवस्था को याद रख के, प्राचीन व्यवस्था को पदानुकरण करके बनाया गया है, जो 2023 से फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो वर्तमान शिक्षा में जो मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल एजुकेशन है, वो एक्चुअली लिगेसी ऑफ ओल्ड एंशियंट लैंग्वेज एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही है। अर्थात आज जो हम लोग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करते हैं, अर्थात एक साथ 2-3 भाषा को शिक्षा करना, एक साथ 2-3 कल्चर को शिक्षा करना, जैसा हम लोग का फिलोसफी शिक्षा में क्या करते हैं, हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ते हैं। तो ये जो कल्चरल जो शिक्षा व्यवस्था है, ये सब धारा एक्चुअली प्राचीन धारा का अनुकरण है। तो आज भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम लोग कैसे देख पाते हैं ये डायलॉग सिस्टम को, डायलॉग व डिस्कशन को कैसे देख पाते हैं? आज सेमिनार, वेबिनार
वेबिनार तो नहीं कहेंगे, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम देख सकते हैं। जो कॉन्फ्रेंस के नाम पे, सेमिनार के नाम पे जो होता है वो भी डायलॉग का ही एक परिवर्तित रूप है। तो एंशिएंट इंडिया में डिबेट का क्या क्या रूल था, ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। प्राचीन भारत में दर्शन और धर्म के भीतर के जो पब्लिक डिस्कशन होता था, वादानुवाद होता था, तो इसमें सबसे आर्गुमेंट करने के पहले एक व्यक्ति, मान लीजिए दोनों व्यक्ति का बीच में जो डायलॉग चल रहा है, तो विपक्ष जो है उनको पहले की बात पूरा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टीवी में होता है, एक लोग बात कर रहे हैं या 10 लोग चिल्ला रहे हैं, कोई किसी का बात नहीं सुन पाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो जो पूर्व पक्ष है उनका पूरा बात वो रखेंगे, अपना पॉइंट को रखेंगे, और जब कहेंगे कि मेरा बात कंप्लीट हो गया, तब दूसरा पक्ष उसको खंडन करके अपना मत को प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब कहेंगे तब पहला व्यक्ति भी उनका इशू नहीं उठा सकते, कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है बीच में। वो कंप्लीट होने के बाद ही फिर पहले वाला व्यक्ति अर्थात पूर्व पक्ष उसको उत्तर दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न और उत्तर के बीच में ये डिस्कशन चलते रहेगा, और बीच बीच में उदाहरण के रूप में उसको पुष्टिकरण करेगा, अर्थात जो बोला है वो देखिए उदाहरण इस प्रकार होता है करके उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे, एविडेंस के रूप में रखेंगे, जो कोर्ट में चलता है। कोर्ट में एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको डिबेट में उदाहरण कहा जाता है, जो उदाहरण के रूप में उसको पुष्टिकरण किया जाता है। तो डिबेट के नियम में बताया गया है कहाँ डिबेट हो सकता है, कब हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो भारतीय विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय में ये नियम तैयार किए हैं। बहुत ही निष्ठा के साथ ये नियम तैयार किए हैं, और कलेक्शन ऑफ मैनुअल्स ऑफ डिबेट करके ये मिलता है। कलेक्शन ऑफ मैनुअल्स ऑफ डिबेट करके मिलता है, प्राचीन नियमावली। लेकिन बहुत प्राचीन डिबेट सिस्टम नहीं मिलता है, क्योंकि वो हम लोग का उपलब्ध नहीं है। मूलतः चरक संहिता में फर्स्ट एंड फिफ्थ अध्याय जो है, ये दोनों में डिबेट की नियमावली बताया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत का चरक संहिता, और दूसरा है आपका न्याय शास्त्र में विभिन्न प्रकार जो कमेंट्री लिखा गया है, उसमें कमेंट्री मतलब टीका लिखा गया है, वो टीका में भी बताया गया है कि डिबेट का नियमावली क्या होगा, अर्थात डिबेट में क्या हो सकते हैं क्या नहीं, शुड बी शुड नॉट बी, डू और डजंट, ये बताया गया जो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना उचित होगा क्या नहीं करना उचित होगा, विशेष रूप में बताया गया है। तीसरा जो है हम लोग देखते हैं आपका 5th सेंचुरी में आचार्य दिग्नाग बौद्ध दार्शनिक लॉजिशियन, इसके बारे में 2-4 शब्द हम बोलना चाहते हैं। जो देखिए, जो न्याय परंपरा जो है, वैदिक ब्राह्मणिकल परंपरा में लॉजिक सिस्टम था, क्योंकि डिबेट एक लॉजिक का पार्ट है। देखिए, डिबेट और डिस्कशन और जो डायलॉग है ये लॉजिक का पार्ट है। लॉजिक मतलब तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, अन्निखी भी बोला जाता है। आपका 3rd सेंचुरी BC में जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उसमें भी अन्निखी शब्द का प्रयोग मिलता है। रामायण महाभारत में अन्निखी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो अन्निखी मतलब तर्कशास्त्र। तो ब्राह्मणिकल तर्कशास्त्र जो है वो बहुत प्राचीन है, और 3rd सेंचुरी BC से शुरू करके आज तक इसका धारा चल रहा है। इसका धारा 1000 साल में नया रूप परिग्रह किया, जिसको नव्य न्याय कहा जाता है। इसके पहले जो न्याय था उसको प्राचीन न्याय कहा जाता है, इसके बाद में नव्य न्याय कहा जाता है। गंगाधर जो आए हैं, इसके बाद तत्व चिंतामणि करके एक किताब लिखे हैं, उसके बाद न्याय नव्य न्याय के रूप में उसको जाना जाता है। तो जो भी है, तो ब्राह्मणिकल न्याय बहुत प्राचीन था, लेकिन बौद्ध न्याय भी जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्य नागार्जुन आए थे, तो आचार्य नागार्जुन को बहुत बार उनको ब्राह्मणिकल लॉजिक द्वारा आक्रमण किया जाता था, लेकिन उनके सामने कोई हथियार, इस अर्थ में अब लोग जुगाड़ बोलते हैं,
ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिस द्वारा ब्राह्मणिकल लॉजिक को प्रतिवाद कर सकते हैं। इसलिए आचार्य नागार्जुन इसके बारे में सोचे थे, कुछ नियम बनाए थे जो किस प्रकार में हम ब्राह्मणिकल लॉजिक को उत्तर दे पाए, अर्थात प्रतिपक्ष के रूप में, उत्तर पक्ष के रूप में हम किस प्रकार में उसको जवाब दे सकेंगे। लेकिन इसके बाद आचार्य दिंगनाक जब आए हैं, आचार्य दिंगनाक को फादर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक कहा जाता है, फादर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। तो फादर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक के रूप में वो बुद्धिस्ट लॉजिक का नियम कानून बनाए हैं। उनका एक किताब है, बादन न्याय करके जो किताब है, बादन न्याय में केवल डिबेट के रूल बताया गया है, जो कैसे करके डिबेट हो सकते हैं, डिबेट में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कब हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं, कितना दिन तक चलेगा। इस संदर्भ में हम एक कहना चाहते हैं, जो डिबेट केवल 1 घंटा, 2 घंटा, 1-2 सप्ताह की नहीं चला, कभी कभी 1 महीने, 2 महीने, कभी कभी और भी लंबा समय तक डिबेट चला। एक ही इशू पर लोग बात करते थे, मतलब हम चिंता की समय मिल जाता था, जो वो लोग कोई प्रश्न रखा है उसका उत्तर देने के लिए मुझे को 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने समय मिल जाता था, इसके बाद हम देते थे। क्योंकि यहाँ जीतने का उद्देश्य नहीं था। डिबेट मतलब वादानुवाद में, वाद परंपरा में कोई किसी को जितना तो मूल उद्देश्य है, लेकिन जितना लॉजिकल आर्गुमेंट द्वारा जितना रियलिटी तक पहुंचना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। जे रियलिटी तक पहुंचना, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द रियल थिंग्स, इस पर पहुंचना। तो इसलिए मूल उद्देश्य जब रियलिटी तक पहुंचना होता है तो उसमें उसके लिए सोचने की समय मिल जाता था। तो आचार्य नागार्जुन, आचार्य दिंगनाक की बात हम लोग किए हैं। आचार्य दिंगनाक बौद्ध दार्शनिक के रूप में, बौद्ध न्याय शास्त्री के रूप में वो डिबेट के नियम बनाए हैं। तो डिबेट के नियम में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपका डेफिनेशन, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, क्लियरिटी ऑफ डेफिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ डेफिनेशन, ये कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। इसके बाद एग्जाम्पल, ये सब बात कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता में इसका बारे में बताया गया है, द डेफिनेशन, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, क्रिटिसाइज एंड क्लैरिटी ऑफ डेफिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, ये बताया गया है चरक संहिता में। और पक्षिल स्वामिन की एक नए भाष्य है, नए भाष्य का एक टीका कमेंट्री है, 5th सेंचुरी में लिखा गया है। और डिबेट रिलेटेड पैसेज, डिबेट रिलेटेड कोई पैसेज जब देते हैं उसमें क्या क्या करना है वो नियम बनाया गया है। बोला है कि परीक्षा करना, निरीक्षा करना और विश्लेषण करना। कोई भी कोई पैसेज दिया गया है, मतलब पूर्व पक्ष हो, उत्तर पक्ष हो, कोई पैसेज दिया है तो पैसेज को, मतलब कोई नरेशन दिया है तो नरेशन को परीक्षा करना, निरीक्षा करना और विश्लेषण करना। तो इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाया गया है, जे कोई भी पूर्व पक्ष हो, उत्तर पक्ष हो, कोई भी हिस्टोरिकल डेफिनेशन जब देंगे, जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन और हिस्टोरिकल डेफिनेशन में कंसाइज फॉर्म में करना है। अर्थात आप डिबेट में आए हैं, मान लीजिए आत्मा नित्य है कि अनित्य है, इस बारे में आपको बताना है, अरे उसका हिस्ट्री आप बताना शुरू किया, 7 दिन से आप हिस्ट्री बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बोला है कि कंसाइज फॉर्म में कोई भी हिस्ट्री, अर्थात उसको पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, कोई भी आर्गुमेंट को पुष्ट करने के लिए उसका परिप्रेक्ष्य में आपको हिस्ट्री बताना है, उसका परिप्रेक्ष्य में आपको कंपैरिजन करना है, तो वो सभी समय वो कॉम्पैक्ट रूप में होगा, कंसाइज रूप में होगा। ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि ये होना चाहिए। सिस्टेमेटिक डिस्कशन इन द प्रूफ एंड रेफुटेशन, अर्थात जब हम आपको प्रूव करेंगे, आपको प्रमाण करेंगे और दूसरे को रिफ्यूट करेंगे, तो उसमें सिस्टेमेटिक डिस्कशन होना चाहिए, ये विषय में सावधानता दिया गया है। लेकिन ये बात को सभी फिलोसॉफिकल सिस्टम, अर्थात सभी दार्शनिक संप्रदाय इसको मान लिया है, जो सभी दार्शनिक संप्रदाय मान लिया है जो डिस्कशन शुड बी सिस्टेमेटिक। 5th to 11th सेंचुरी के बीच में 4 जो मेजर कमेंट्री लिखा गया है न्याय दर्शन के ऊपर, वो 4 मेजर कमेंट्री में डिबेट की नियमावली पर ज्यादा ध्यान दिया गया था।
क्या क्या डिबेट का नियम हो सकता है। 12th सेंचुरी में चक्रपाणि दत्त का एक इंटरप्रिटेशन ऑफ डिबेट करके एक ये है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिबेट करके एक आपका कमेंट्री है जो आयुर्वेद दीपिका नाम पे है। कमेंट्री का नाम है आयुर्वेद दीपिका, चक्रपाणि दत्त का है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिबेट। लेकिन चक्रपाणि दत्त एक फिजिशियन थे, एक फिजिशियन लिख रहे हैं आपका आयुर्वेद दीपिका किसके कौन विषय पे ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिबेट के बारे में, अर्थात डिबेट किस प्रकार हो सकता है इसके बारे में। यही सब देखना है, बहुत रोमांटिक मतलब बहुत अच्छा बात है। तो ये हम लोग बोल दिया है जो बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल लॉजिक की डिबेट जो 600 साल चले हैं उसमें बहुत सारे किताब हम लोग को उपलब्ध है। अभी हम लोग कुछ इंस्टेंस देना चाहते हैं, कुछ उदाहरण देना चाहते हैं जो डिबेट डिस्कशन हुआ है, इसका प्रूफ क्या है। हम लोग बोल देने से तो नहीं चलेगा। तो ये एक किताब जो पहले नाम लिया है टिबेटन किताब है पक्सम जोंगसम। तो ये किताब जो सुम्पा खेनपो ऐसे पेल्जर लिखे हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स के बारे में लिख रहा है 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में लिख रहे हैं नालंदा महाविहार में यही लिख रहे हैं जो पूर्व दिक में जो मेन गेट था उसका बाहर में ये डिबेट हो रहा है, पब्लिक डिबेट है। ये पब्लिक डिबेट का कंडक्ट कौन कर रहे हैं, मतलब इसका परिचालना कौन कर रहे हैं, जैसा अभी अविनाश जी कर रहे हैं। इस प्रकार चंद्रकीर्ति एक आचार्य थे उस समय, तो चंद्रकीर्ति एक आचार्य जो ये डिबेट को परिचालना कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे। और ये बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पर एक इशू पर एक डिबेट था। इसको हम लोग उल्लेख क्यों कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत पॉपुलर है डिबेट। A point of controversy was raised from the ordinance group of grammatical issues that had been outlooked. डिबेट चल रहा था, एक विषय को वो लोग ओवरलुक किया है और वो विषय क्या था, ग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक विषय पे था। अर्थात ग्रामेटिकल इशू है लेकिन उसका लिंग्विस्टिकली उसको एनालिसिस नहीं किया गया था, लेकिन डिबेट चल रहा था और उसलिए वो डिबेट दूसरा टर्न ले रहा था। मतलब डिबेट का कंक्लूजन और कुछ हो रहा था जो होना नहीं था। अर्थात डिबेट का कंक्लूजन जो होना था वो नहीं हो करके दूसरा कुछ होने जा रहा था। इस प्रकार टर्निंग पॉइंट में एक व्यक्ति ऑर्डिनेंस ग्रुप से हाथ उठा करके बोला कि मुझे को कुछ कहना है। तो वो प्रश्न रखा है पहले, बोले देखो जो बुद्धिस्ट लोग वर्ड और मीनिंग को इस प्रकार में देखते हैं, वर्ड इज नॉट परमानेंट, मीनिंग इज नॉट परमानेंट। सो वर्ड और मीनिंग के बीच में आप लोग इसका विचार क्यों नहीं करते हैं? ये विचार कीजिएगा तो इसका कंक्लूजन दूसरा कुछ आएगा। तो इसके बाद उनका प्रश्न को लिया गया है और उनका विचार को सुना गया है और विचार की सुनने के बाद उनको पूछा गया है, चंद्रकीर्ति पूछा जो आप कहाँ से आए हैं, कौन है आप? तो बोला हम एक ले पर्सन है, हम बंगाल से आए हैं, हम बंगाल से आए हैं, मेरा नाम है चंद्र गोविंद। तो हम केवल सीखने के लिए आए हैं। तो बोले क्या सीखना चाहते हैं? बोले हम ये शब्द विद्या सीखना चाहते हैं। तो शब्द विद्या सिखाया जाता है, शब्द विद्या मतलब व्याकरण, और वो प्रश्न उठाया था व्याकरण के बारे में और समाधान भी किया है, उनका रेज किया है प्रश्न के आधार पर। बोला है द कोर्स ऑफ deliberation got a new turn. The point raised by the questioners was linguistic importance between the word and its meaning. When sound is whether real, not permanent, according to the Buddhist. तो ये पॉइंट को उठाया और इसको डिस्कशन किया, एनालिसिस किया। इसके बाद वो डिबेट का मने मोड़ घूर गया, मतलब डिबेट का दूसरा कंक्लूजन आया। इसके बाद उनका परिचय जानने के बाद ये चंद्र गोविंद है और उसका एंट्री मिल गया नालंदा यूनिवर्सिटी में, उनको एंट्री मिल गया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और ये डिबेट को कहा जाता है, डिबेट इज पॉपुलर इन चंद्र गोविंद एंड चंद्रकीर्ति एंड चंद्र गोविंद डिबेट करके कहा जाता है। ये आप खोलिएगा तो इंटरनेट में भी मिल सकते हैं।
जो चंद्रकीर्ति एंड चंद्रगोविंद डिस्कशन व डिस्कोर्स करके ये मिलता है, बहुत पॉपुलर डिबेट है। इसका बारे ये टिबेटन टेक्स्ट में इसका चर्चा है। तो इससे प्रूव होता है कि इस प्रकार डिबेट जो पब्लिक डिबेट होता था नालंदा विश्वविद्यालय के बाहर की गेट में, इसमें साधारण आदमी पार्ट ले सकते हैं और वो पार्ट ले करके किस प्रकार में अपने को प्रकाशित किए और इंटरव्यू में वो पास हो गया, इसके लिए उनका एडमिशन भी हो गया। दूसरा है साम्य डिबेट। हम लोग जानते हैं साम्य मोनास्ट्री एक मोनास्ट्री है जो तिब्बत में बनाया गया है, और ये साम्य मोनास्ट्री भारतीय उदंतपुरी महाविहार के नाम पे जो महाविहार था, बिहार शरीफ में जो उदंतपुरी महाविहार था, उसका अनुकरण के रूप में उसको अनुकरण करके एकदम रिप्लिका की तरह बनाया गया है तिब्बत में। और यही पहले मोनास्ट्री है तिब्बत में, फर्स्ट मोनास्ट्री इन तिब्बत साम्य मोनास्ट्री। साम्य मोनास्ट्री विभिन्न कारणों से ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय संस्कृत पांडुलिपि जो तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ था, वो शुरुआत वही साम्य मोनास्ट्री से ही हुआ था, सेकेंड फ्लोर में, और वो भारतीय पंडित लोग ही उसका शुरुआत किए थे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं साम्य मोनास्ट्री डिबेट पर। साम्य डिबेट के नाम पे जाना जाता है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो साम्य डिबेट करके डिबेट हुआ था, जो भारतीय पंडित और चाइनीज पंडित के बीच में डिबेट हुआ था। और डिबेट का विषय भी अद्भुत था। क्या था? जो गौतम बुद्ध जो बोधिसत्व लाभ किए थे, अर्थात बोधि लाभ किए थे, एनलाइटनमेंट जो उनको प्राप्त हुआ था, वो एनलाइटनमेंट अचानक प्राप्त होता है कि वो सीक्वेंसली प्राप्त होता है, यही विषय था, इशू था यही। जो बोधि जो होता है, बोधि मतलब अल्टीमेट ज्ञान जो मुझे को मिलता है, किसी को मिलता है, गौतम बुद्ध को जो मिला है वो अचानक उनको मिल गया कि वो मिलने के लिए भी एक परंपरा, एक सीक्वेंस होता है, यही था। तो साम्य डिबेट इज कॉल्ड, साम्य डिबेट को कभी कभी लासा काउंसिल भी कहा जाता है, अर्थात बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसा यहाँ 6 बुद्धिस्ट काउंसिल नाम पे जाना जाता है, तो तिब्बत में भी एक काउंसिल हुआ था जिसको साम्य डिबेट के नाम पे बोला जाता है। तो तिब्बतन बुद्धिज्म में लासा काउंसिल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डिबेट कितना दिन तक, कितना समय तक चल सकता है। यही साम्य डिबेट एक उदाहरण है जो 2 साल तक चला था, 2 years, कंटिन्यू 2 years। टाइम दिया गया है 792 से 794 CE तक, क्रिश्चियन एरा तक चला था। और इसका विषय भी हम लोग बोले हैं कि एनलाइटनमेंट, व्हेदर एनलाइटनमेंट इज अटेन्ड ग्रेजुअली थ्रू द एक्टिविटी और सडनली विदाउट एक्टिविटी, यही विषय था। तो इसमें जो चाइनीज जो पंडित, चाइनीज स्कॉलर जो भाग लिए थे, उनका संस्कृत नाम है महाजान। उनका चाइनीज कुछ नाम होगा लेकिन संस्कृत नाम है महाजान। तो वो भाग लिए थे और ये डिबेट बहुत दिन तक चला। और इसका जो है आपका कमलशील का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, कमलशील का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से इंडियन पंडित उसको स्थापित किया है जो नहीं, एनलाइटनमेंट सडनली नहीं आता है, वो ग्रेजुअली आता है, वो सीक्वेंसली आता है, वो एक के बाद आता है। और आपका ये आने के लिए इसका ये थ्रू एक्टिविटी आता है, मतलब जो संतति परंपरा, जो सीक्वेंस अर्थात चेन ऑफ सीक्वेंस की बात है, बुद्धिस्ट फिलोसफी का गहराई की बात यहाँ छुपा हुआ है। जे देखिए बुद्धिज्म में माना जाता है कि सब कुछ मोमेंटरी है, अर्थात क्षणिक है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरा क्षण में विनष्ट हो जाता है। तब ये कंटिन्यूटी कैसे रखा जाएगा? लेकिन वहां बताया गया है कि कंटिन्यूटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अर्थात कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी के अंदर। जैसा उदाहरण दिया गया है, जो लोटस को शतदल कहा जाता है। 100 दल को एक साथ सूज से आप फूटा कीजिएगा तो ऊपर में फूटा दिखाई पड़ेगा, नीचे में दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बीच में फूटा नहीं है क्या? है तो जरूर। जैसा एक रिंग ऑफ फायर और चेन ऑफ फायर करके एक उदाहरण दिया जाता है, जो लंबा सूता में
थोड़ा कपड़ा बांध के उसका मिट्टी का तेल लगा के आग जला दीजिए और अंधकार जगह में उसको घुमाते रहिए, तो दूर से लगेगा कि ये रिंग ऑफ फायर अर्थात चक्राकार में अग्नि आवर्तन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो रिंग ऑफ फायर तो है नहीं, वो बॉल ऑफ फायर, ये एक ही जगह में आग है। तो ये जो आंख की लिमिटेशन है इसका हम लोग देखते हैं जो रिंग ऑफ फायर के रूप में, इसलिए लेकिन रियलिटी में क्या है, वो बॉल ऑफ फायर है। तो बॉल ऑफ फायर में बीच बीच में उसका डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी के रूप में होते हुए भी कंटिन्यूटी है। इस प्रकार में डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के स्वीकार किया गया है, अर्थात कार्य और कारण प्रवाह में डिसकंटिन्यूटी तो है, जो कार्य है वो कारण नहीं है, जो कारण है वो कार्य नहीं है, लेकिन कार्य और कारण के बीच में कंटिन्यूटी भी स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप बीज से वृक्ष को मान पाएंगे। बीज से वृक्ष हुआ है, वृक्ष से बीज होता है, ये जो कंटिन्यूटी मानने के लिए आपका कंटिन्यूटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी व डिसकंटिन्यूटी इन कंटिन्यूटी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार में एनलाइटनमेंट भी एक डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूटी जिसमें सीक्वेंस है, जिसमें एक्टिविटी है, ये माना गया है। तो ये इतना था कि मेरा बात और ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो डायलॉग परंपरा है, ये जो डायलॉग ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन प्राचीन परंपरा से आया है और ये परंपरा सभी जगह में था, श्रामणिक परंपरा में था, जैनिज्म में था, बुद्धिज्म में था, ब्राह्मणिज्म में था, सभी जगह में था, लेकिन आज भी उसका दूसरा रूप में आया है। और ये डायलॉग तभी सफल होता है जब विद्यार्थी के रूप में कोई विद्यार्थी अपना विषय को सही ढंग से उपस्थापित करके वो प्रूव कर सकते हैं कि हम कितना तक रियलिटी तक पहुंच पाए हैं। तो अर्थात मेरा विद्या को कंप्लीट करने के लिए ये डायलॉग होना चाहिए। मोनोलॉग और डायलॉग की बात यही है, जो मोनोलॉग मतलब हम अपने से भी बात करते हैं ना, हम कभी कभी अपने से भी बात करते हैं, तो घर में बैठ करके जब हम अपने से अकेला बात करते हैं तब इसको मोनोलॉग हो जाता है, और जब हम आपके साथ बात करते हैं तब डायलॉग होता है। डायलॉग में कंप्लीट कम्युनिकेशन होना चाहिए, अर्थात पक्ष व विपक्ष, उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष दोनों में माने कंप्लीट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये प्राथमिक शर्त है। अर्थात हम जो कहना चाहते हैं आपको वो समझा दिया, आप समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं वो भी हम समझ गया। ये जब तक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक डायलॉग कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए डायलॉग कंप्लीट हुआ है मतलब हम लोग रियलिटी तक पहुंच गया है। ये डायलॉग जितना होते रहेगा अपने के अंदर, दोनों के बीच में, तीनों का बीच में, ग्रुप के बीच में जितना होते रहेगा उतना एजुकेशन क्वालिटी बढ़ते रहेगा। अर्थात एजुकेशन क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए डायलॉग आवश्यक है, ये कहना चाहता हूँ। इसी के साथ हम विराम देना चाहते हैं। हम नहीं जानते हैं आप लोग को कितना लाभ हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम आप लोग को देख के बहुत खुश हैं, अच्छा लगे। आप लोग को पुनः धन्यवाद दे करके, कोई भी किसी का कोई जिज्ञासा है तो हम कोशिश करूंगा आप लोग को जवाब देने का, यही रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, सच ए वंडरफुल टॉक। आई होप जो है बहुत सारे ऑडियंस नॉलेज गेन हुआ होगा। स्पेशली सर एम्फेसिस कर रहे थे मेटाफिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एक्सट्रोवर्ट एजुकेशन, इंट्रोवर्ट एजुकेशन, formal, informal, meditation, what is the role of, what is the status of female education in that time, Vedic traditions, Buddhist traditions, and lot of जो वहाँ पे जो स्टडी होती थी इंक्लूडिंग लाइक प्लानिंग, डिबेट का रूल, डिबेट का जो आर्गुमेंट शुड बी लाइक सपोर्टिव होनी चाहिए, definitions and किसी चीज को observation and explanation and a definition of like concise explanation of anything. So really such a wonderful talk, sir. So now I'm inviting some students if some questions you can ask yeah, audience. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग
पूछ सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। नमस्कार, मेरा नाम दीपंकर सालू है। मैं बुद्धदेव सर का स्टूडेंट हूँ। नालंदा महाविद्यालय से मैंने पीएचडी किया है। तो सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर, इतना इंफॉर्मेटिव और इनकरेजिंग आपका जो लेक्चर के लिए, और बधाई देता हूँ सुबोध जी को, इतना सुंदर एक टॉपिक में एक वेबिनार का आयोजन किया। अपना कैमरा भी चालू कीजिए सर, दीपंकर सर। नहीं ठीक है, कैमरा ओके। वगैरह चालू कीजिए। वीडियो साउंड क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है। तो सर पहले मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। सर ने जो चाइनीज स्कॉलर का जो नाम लिया था वो चाइनीज में नाम था हासांग। तो उस टाइम में एक ऐसा शर्त दिया जाता था, या फिर डिबेट में हार जाने से या फिर जीत जाने से, या फिर उसका धर्म को या फिर स्कूल को जो जिस संप्रदाय में रहते हैं तो उसको ग्रहण करना है या फिर सुसाइड करना है। तो हासांग ने जब पराजित हुआ था तो 2100 या फिर 21,000 तो एक साथ वो उसका शिष्यों को लेकर हासांग ने सुसाइड किया था। तो ये तिब्बतन हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक बात था। और सर मेरा अभी एक सवाल है सर आपसे, जो एंशियन महाविहार में, नालंदा महाविहार में जो भिक्षु के साथ जो लेमैन भी पढ़ाई लिखाई करते थे, एडमिशन मिलता था, तो सर यहाँ पे कोई मेंशन है सर, जो कोई नाम्स को भी यहाँ पे एडमिशन मिला है या पढ़ाई लिखाई किया है? नहीं, ये हम नहीं बताए हैं। सही बात है, आप प्रश्न सही है, लेकिन नालंदा महाविहार में लेमैन का एडमिशन नहीं मिलता है। लेमैन का प्रवेशाधिकार केवल डिस्कोर्स में अर्थात डिबेट में होता था। डिबेट में आकर के वो पार्ट ले सकते थे, उसमें वो अपना प्रश्न रख सकते थे, डिस्कशन में भाग ले सकते थे, इस प्रकार में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन महाविहार के अंदर इसलिए डिस्कोर्स बाहर में होता था, मेन दर्जा की बाहर में होता था, लेमैन को पार्टिसिपेशन के रूप में वहाँ एडमिशन देने के लिए। लेकिन वही डिबेट की एडमिशन उनका होता था। डिबेट के बाद उनका अंदर में प्रवेश, क्योंकि अंदर में एक डिसिप्लिन चलता था ना, वहाँ बौद्ध परंपरा में जो आपका विनय है वो विनय के अनुसार को चलना पड़ता है। तो विनय के अनुसार तो लेमैन चल नहीं सकते हैं, तो लेमैन का ट्रेनिंग नहीं होता था, इसलिए डिस्कोर्स में केवल डिबेट में भाग ले सकते थे, यही मिलता है। और लेमैन अंदर में जाकर के पढ़ाई कर सकते ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? धर्मकीर्ति को हम लोग देखते हैं। बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति बाद में आचार्य बने हैं, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य बने हैं, लेकिन पहले आए थे विद्यार्थी के रूप में। यहाँ जो भी लोग आचार्य बने हैं पहले विद्यार्थी के रूप में आए हैं। बहुत सारे, सबके बारे में तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि नालंदा के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। आज ज्यादा तो हम लोग के सामने है नहीं, तो जितना भी जानते हैं, जो भी आए हैं यहाँ पहले विद्यार्थी के रूप में आए हैं, सीखे हैं, इसके बाद टीचर बने हैं। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का बीच में क्या अंतर है? शिक्षा जानने के पहले वो विद्यार्थी हैं, जब जान जाते हैं तब शिक्षक बन जाते हैं। तो इसलिए धर्मकीर्ति भी जब आए थे उनको बौद्ध भिक्षु बनना पड़ा, नहीं तो उनका एडमिशन नहीं होता था। तो इसलिए हियंगसंग जब आए थे बौद्ध भिक्षु बन के आए थे, लेकिन नहीं मानते तो यहाँ उनका एडमिशन उनको पता था। तो ऐसा करके जो कोई भी आए हैं विद्यार्थी के रूप में आए हैं, तो फर्स्ट डिसिप्लिन तो उनका यही है, जब बौद्ध मंक, आपको मंक पहले होना चाहिए, आपका प्रवज्जा लेना चाहिए, इसके बाद ही आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन लेमैन का वहाँ एडमिशन होता था, ऐसा कोई उदाहरण अभी तक हम पता नहीं है। और थैंक यू सर। और सर भिक्षुनी के लिए कोई ऐसा कोई है उदाहरण है सर? यहाँ तो भिक्षुनी की कोई जगह, क्योंकि भिक्षुनी का अलग होता था। भिक्षुनी का बिहार के रूप में हम लोग जानते हैं, जो भिक्षुनी का वहाँ प्रवेश होता था, लेकिन महाविहार में कोई भिक्षुनी का प्रवेश हम लोग नहीं जानते हैं। जितना महाविहार के रूप में अर्थात यूनिवर्सिटी के रूप में जितना संस्था के नाम पाया जाता है, मिलता है, तो उसमें भिक्षुनी का प्रवेश तो हम लोग नहीं रखते, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद ही बताए थे भिक्षु और भिक्षुनी एक साथ शिक्षा नहीं ले सकते हैं, एक साथ तपस्या नहीं कर सकते, एक साथ ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए दोनों अलग संस्था भी बनाए थे। अर्थात भिक्षुनी संघ और भिक्षु संघ दोनों अलग संघ है। तो दोनों संघ को एक साथ को भी जैसा आज हम लोग को एजुकेशन हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार कोई को एजुकेशन नहीं चलता था बौद्ध युग में। थैंक यू वेरी मच सर। और किसी का कोई प्रश्न?
किसी को और कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क। सर सबसे पहले अगर तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सर बहुत अच्छे से बताया, मुझे बहुत समझ में आया। सर मेरे थोड़ी सी क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा दुविधा है सर। आपने बोले कि सर बताए थे कि 600 सालों तक अविनाश सर बोले कि 500 से 1200 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय चला, जिसमें से 600 सालों तक वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा में वाद विवाद हुआ। तो सर आप जो अभी आपने बता रहे थे सर कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में वो बौद्ध मॉन्क ही सिर्फ अध्ययन करते थे, तो सर वो वाद विवाद वो कैसे डेवलप हो जाता है सर? एक तरफ वास्ट नहीं होगा सर? जी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली ये जो वादानुवाद होता था, ये वादानुवाद को भी एक स्थान में बैठ करके कोई नहीं करते थे। हम जो वो वादानुवाद की जो बात किए हैं, अर्थात ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो वादानुवाद 600 साल के वादानुवाद किए हैं, इसमें बैठ के एक साथ बैठ के वादानुवाद होता हो सकता है, इसका उल्लेख कम है। लेकिन वो जो डायलॉग होता था, वो डायलॉग क्या होता था, मान लीजिए हम बोले हैं जो परमानेंट आत्मा नहीं है, ये बोलने के साथ साथ हम एक किताब भी लिख दिया, संस्कृत में एक किताब लिख दिया और लिख के हम दे दिया, तो मान लीजिए ब्राह्मणी के लॉजिशियन लोग उसको पढ़े, सीखे, सुने, इसके बाद उसको खंडन किए, खंडन करके फिर बोला नहीं नहीं परमानेंट आत्मा है, इसका प्रमाण ये है, फिर वो एक किताब लिख दिया। उसको खंडन करने के लिए फिर बौद्ध और कोई आचार्य उसको और एक उस पर एक किताब लिख दिया। ऐसा करके डायलॉग चलता था। वो डायलॉग मतलब फिजिकल बैठ के सामने सामने बैठ के भी हुआ था, जैसा धर्मकीर्ति के साथ हुआ है। धर्मकीर्ति के साथ आपका बहुत बड़ा पंडित जो उनको मामा भी कहा जाता है, नाम तो याद नहीं आ रहा है अभी, तो मीमांसक थे, तो उनके सामने बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग का कितना पेशेंस है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं धर्मकीर्ति यहाँ आए थे आपका दक्षिण भारत से दिंगनाक के पास शिक्षा लेने के लिए। दिंगनाक का उम्र हो गया, वो अपना शिष्यों के पास ईश्वर सेन के पास भेजे हैं। ईश्वर सेन से वो सीख लिया, बहुत कम समय में सीख लिया, क्योंकि धर्मकीर्ति के बारे में कहा जाता है जो 16 साल में पूरा वैदिक टेक्स्ट पढ़ के सीख लिया था। इतना बड़ा तीक्ष्ण बुद्धिधारी विद्वान थे। तो इसके बाद वो देखा कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में जो लॉजिक सिस्टम चलता है वो भी मुझे को सीखना है। तो सीखने के लिए वो उस समय की जो बड़ा विद्वान थे तो उनके पास गए और सिखाने के लिए बोले, लेकिन वो राजी नहीं हुए इसलिए कि आप बुद्धिस्ट ये हैं, लॉजिशियन हैं, आप जाइए, आपसे मेरा विरोध है, हम आपको नहीं सिखाएंगे। लेकिन धर्मकीर्ति आदमी जो है वो छोड़ने वाला नहीं था। वो क्या सोचे, देखिए वो बोले कि हमको आपसे तो सीखना है। तो वो क्या किए, उनका पत्नी को ये किया, तो बोला कि उनका पत्नी का हम काम कर देंगे, उनका पत्नी को खुश कर देंगे, तो हो सकता है पत्नी के माध्यम से हम उनके तक पहुंच सकते हैं। तो पत्नी की ऐसा उत्तिरंजित करके बताया जाता है 50 आदमी का काम अकेला कर देते थे। तब पत्नी बहुत खुश हो गया। इसके बाद पत्नी से कुछ विद्या सीख लिए और इसके बाद पत्नी को ये करके बोला कि शहर से मतलब उनसे कुछ मुझे को विद्या सीखना है। तो बताया जाता है कि 500 लॉजिक उनसे भी सीख लिया। कुमारिल भट्ट नाम याद आ गया, कुमारिल भट्ट। तो कुमारिल भट्ट से भी 500 लॉजिक सीख लिया और 100 लॉजिक उनका पत्नी से भी सीख लिया। लेकिन कितना दुष्ट आदमी भी देखिए, विद्वान तो है, लेकिन इसके बाद वो क्या किए, राजा की दरबार में विज्ञापन दे दिया, जब विश्व में कोई है धर्मकीर्ति को हराने के लिए तो हम चैलेंज देते हैं, आप मेरे साथ तर्क युद्ध कर सकते हैं, मतलब डायलॉग कर सकते हैं, मतलब डिबेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ही है जो अभी डॉक्टर दीपंकर बता रहा था, जे आपको हम हरा देंगे तो आपको बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा।
आपको हम हरा देंगे तो आपको बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा, यही शॉर्ट है। और हम यही धर्मकीर्ति बोला कि हम आपसे हार जाएंगे तो आप जो शास्त्री मुझे को दीजिएगा मुझे को मंजूर है। तो वो ऐसा करके पूरा भारत में डिक्लेयर कर दिया जो धर्मकीर्ति, आचार्य धर्मकीर्ति नाम पे कोई है जो इस प्रकार विज्ञापन दिया है, राजा की दरबार में विज्ञापन है। तो बहुत सारे विद्वान, विशेष करके ब्राह्मण के लॉजिकल जो लॉजिशियन है, वो लोग आते रहे और आपका धर्मकीर्ति उसको डिफीट करते रहे, उसको लूजर करते रहे और सबको बुद्धिस्ट बनाते रहे। और उनसे बहुत सारे बौद्ध मंदिर, चैत्र इस प्रकार बना लिए हैं। तो कहाँ की हजारों संख्या में बौद्ध विहार और बौद्ध चैत्र बना लिए हैं धर्मकीर्ति। लेकिन ये चलते चलते जब कुमारिल भट्ट के पास आया, ये कुमारिल भट्ट भी सुन लिया जा रही है धर्मकीर्ति जो मेरे से सीख के गया है वो सबको आह्वान कर रहे हैं। तो कुमारिल भट्ट भी कहा कि क्योंकि विद्वान का एक अहंकार होता है ना, जो हम सबसे विद्वान है तो इसको प्रतिष्ठा भी करना है मुझे को। तो कुमारिल भट्ट भी आए हैं उनके पास और कहे कि धर्मकीर्ति बताओ, तुम हार जाओगे तो क्या होगा। तो धर्मकीर्ति कहा आपका गुरुजी, आपका जो भी शास्त्री है आप दीजिएगा। क्योंकि धर्मकीर्ति उनको शिक्षा कंप्लीट करने के बाद धर्मकीर्ति के पास जितना स्वर्ण मुद्दा था वो गुरुजी को दक्षिणा के रूप में दिया था। और ब्राह्मण को भोजन भी किया था, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन बहुत पसंद है, भोजन हो जाता है तो ब्राह्मण खुश हो जाता है। तो ब्राह्मण को भोजन भी दिया है धर्मकीर्ति, उनको गुरु दक्षिणा दे के आए थे। इसलिए ऐसा कोई गुरु दक्षिणा तो नहीं मांग सकते हैं। बोला कि हम हरा देंगे तो क्या होगा। तो धर्मकीर्ति कहा आप जो चाहेंगे गुरुजी वही होगा, लेकिन आप हार जाएंगे तो क्या होगा। बोले तुम शर्त तो रखो। बोला आपको बौद्ध होना पड़ेगा। तो यही शर्त में युद्ध शुरू हुआ। तो कुमारिल भट्ट के साथ 500 आदमी थे, सबको हरा दिया। और वही 100 लॉजिक में सबको हरा दिया। कौन सा लॉजिक? जो लॉजिक वो कुमारिल भट्ट से सीखे थे वही लॉजिक से वो 100 लॉजिक में सभी 500 आदमी को हरा दिया। लास्ट में कुमारिल भट्ट भी हार गया। और इसके बाद कुमारिल भट्ट क्या करे, बौद्ध होना पड़ा। तो इतिहास बताते हैं कि कुमारिल भट्ट भी बौद्ध बने थे। इतिहास ये भी बताते हैं कि कुमारिल भट्ट आपको धर्मकीर्ति के बाद साथ हार जाने के बाद आत्महत्या किया था। ये भी परंपरा से, इतिहास से माना जाता है। अभी कौन सा सही है बताया नहीं जाता है, लेकिन इतिहास ये है कि ये भी डिबेट चला था। और इस संदर्भ में हम बोलना चाहते हैं कि धर्मकीर्ति जो है यहाँ बौद्ध सन्यासी के रूप में यहाँ एडमिशन मिला था, अर्थात विदाउट सन्यासी होकर के, बौद्ध मंक बिना यहाँ एडमिशन नहीं होता था, इतना तक हम लोग जानते हैं। लेकिन गप बहुत रोचक है। धर्मकीर्ति ऐसा कुमारिल भट्ट की, और कुमारिल भट्ट उस समय श्रेष्ठ विद्वान थे, ब्राह्मणिकल लॉजिक का श्रेष्ठ विद्वान थे। सर धन्यवाद सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन और है? विकास जी को कुछ पूछना है? विकास, हेलो सर। हाँ बताइए। सर मुझे एक जिज्ञासा यह है कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ये दो नाम आते हैं, तो हमें इन दोनों का टाइम पीरियड क्या था ये मुझे जानना था। 7th सेंचुरी कहा जाता है। 7th सेंचुरी मतलब जैसा 650 तो धर्मकीर्ति का यहाँ नालंदा में थे, तो उस समय में होगा। शंकराचार्य भी एक नाम आता है, लेकिन धर्मकीर्ति के साथ भी शंकराचार्य के नाम आता है, लेकिन वो शंकराचार्य और वेदांतिक शंकराचार्य सेम है कि नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है हम लोग को। लेकिन कुमारिल भट्ट को ये भी बताया जाता है कि धर्मकीर्ति का मामा थे, ये भी बताया जाता है जो उनका मामा थे कुमारिल भट्ट, और वो भी 7th सेंचुरी में थे। लेकिन टिबेटन परंपरा से ये पता चलता है, टिबेटन सोर्स से पता चलता है जो कुमारिल भट्ट से धर्मकीर्ति का जो डिबेट हुआ था वो सही रूप में हुआ था। लेकिन शंकराचार्य के नाम पे और एक आचार्य के साथ भी डिबेट हुआ था धर्मकीर्ति का, लेकिन वो शंकराचार्य वेदांतिक शंकराचार्य है कि नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो भी एक नाम आता है। लेकिन वो नाम आता है तो 7th सेंचुरी का वो वेदांतिन शंकराचार्य तो होगा नहीं, वो तो और भी पहले है। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
सो ठीक है, तो ऑडियंस में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नाउ आई एम इनवाइटिंग ज्योति कुमारी टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स. या नाउ ओवर टू ज्योति. Okay, thank you, Avinash sir. Okay, thank you, Avinash sir. ज्योति जी अपना कैमरा ऑन करें. अरे, okay. Good afternoon, everyone. On behalf of Nalanda Foundation, I, Jyoti Kumari, a research scholar of Nav Nalanda Mahavihar, stand before you today with a heart full of gratitude and deep sense of honor as I propose vote of thanks. As we come to the end of this remarkable event, Nalanda Dialogue Tradition, first and foremost, a heartful appreciation to our esteemed distinguished speaker, Dr. Buddhadev Bhattacharya, former head and associate professor, Department of Philosophy, Nav Nalanda Mahavihar. I would also like to thank the coordinator, Dr. Avinash Kumar, assistant professor, microbiology, Jharkhand, and all the respected dignitaries, participants, and volunteers who had dedicated their time for the successful organization of this event. Your unwavering commitment, tireless effort, and invaluable guidance had sculpted this beautiful tradition to a far beyond level. I thank you all for accepting the invite and being present here. Despite of your difficulties, last but not the least, I would like to thank Dr. Subodh Kumar with my utmost appreciation, the representative chairman of Nalanda Foundation, for organizing this event. This event has been possible due to the dedication of all the participants. In closing, I would like to express gratitude to all the persons present here. Let us continue to celebrate the spirit of Nalanda Dialogue tradition. Once again, my heartfelt gratitude to Professor Buddhadev Bhattacharya sir, who graced today as distinguished speaker. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. थैंक यू ज्योति. सबको thank अगेन थैंक यू सर, आपने काफी कीमती समय निकाला और हमारे ऑडियंस को आपने डिलाइटेड किया. और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा नालंदा फाउंडेशन को, जो काफी बढ़िया एक इन्होंने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया. और ऐसे डायलॉग होने ही चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट की ऑडियंस काफी नॉलेज गेन कर सके. तो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय. सर अविनाश सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा फीडबैक फॉर्म सब भरेंगे तो, और उसके साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलेगा सबको, तो फीडबैक फॉर्म जरूर भरें सर. लिंक सुबोध भैया अगेन सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू. पल्लवी, यू हैव सम क्वेश्चन? पल्लवी? नो. सो या, सो आपके मेल में गया होगा इसका लिंक, आप उसको फीडबैक फॉर्म भरें. नहीं, फीडबैक लिंक यहाँ से ही डाल दीजिए, आपके अथी पर है, अब मैसेज गया हुआ है भैया. ओके ओके, लेट मी चेक. डाल देंगे. ठीक है, जिनको फीडबैक फॉर्म नहीं जाएगा वो हमसे संपर्क भी कर लेंगे. और एक बार पुनः भट्टाचार्य सर को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम में आकर अपना वक्तव्य देकर के हम लोगों को लाभान्वित किया है. हम तो उनके शिष्य हैं, हम तो उन्हीं से जो कुछ सीखे हैं, और वो तो सिखाए बहुत कुछ है, लेकिन हम सीख नहीं पाए. फिर भी जो सीख पाए हैं प्रयास कर रहे हैं कि अन्य लोगों को भी और सीखने का अवसर मिले. अविनाश सर का भी पुनः धन्यवाद करते हैं जी, और आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम का संचालन करके इसकी शोभा बढ़ाई और बेहतर इसको बनाया है. और हम आशा करते हैं कि सर आप पुनः, और जब हम लोगों को आवश्यकता होगी तब आप हमारे साथ रहेंगे, इस तरह का आप कार्यक्रम करते रहेंगे. और साथ में आप भी कभी अपने कुछ विषय चुनिए सर, क्योंकि आपका तो माइक्रोबायोलॉजी है, तो उसमें से हम लोग को भी कुछ ज्ञान मिले. एक दिन समय दीजिए. और इसके साथ ही प्रीति स्वराज जी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर
अखबार डिस्कशन फोरम से हैं, दीपंकर जी हैं, जराल जी हैं कश्मीर से, और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबको अपना एक बार धन्यवाद और आभार आप लोग का प्रकट करते हैं कि आप जुड़ करके इस वेबिनार को सफल बनाया। धन्यवाद सबको सर और प्रणाम। Thank you. Thank you. Thank you. फीडबैक लिंक जा रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट और होगा। तो मैं चलते हूँ। Yes, sir. प्रणाम सर। ओके, थैंक यू अगेन। प्रणाम सर। सभी को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको सब। थैंक यू सर। लिंक आ रहा है, बोलिए ना। रवि सर हाँ सर। आपके व्हाट्सएप पर फीडबैक लिंक गया होगा, आप डाल दीजिए। मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, ओके। थोड़ा आप वहां से कॉपी करके डाल दीजिए। सुबोध जी, मैं दीपंकर बोल रहा हूँ। हाँ सुबोध बोलिए। जी, हाँ, हाँ। मैंने अभी पेज में से रिकॉर्डिंग किया पूरा प्रोग्राम को, तो हाँ। ये कहाँ पर सेव हुआ है ये मुझे मिल नहीं रहा है, तो कोई मुझे मदद कर सकता है क्या? इस पूरा प्रोग्राम को क्या मैंने आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इस आपको सुनना है? नहीं नहीं किए नहीं, हैं? ये पूरा प्रोग्राम को मैंने रिकॉर्ड किया है।